So hello and welcome everyone to Industrial Training Masterclass. This session is about resume building where I'm going to be teaching you end to end how you're going to be creating your resume, what all things are important when you're going to be preparing your resume, and please understand if you follow the guidelines whatever I'm going to be saying in, trust me, कोई भी companies आपके resumes reject नहीं करेंगे. Now, very basic rule whenever you're applying for whichever company or domain for an industrial training. So, say for example, I am very much interested or keen to get into investment banking. अरे भाई मैं आईबी में जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट इनटू जेपी मॉर्गन, आई वॉन्ट टू वर्क विद एचएसबीसी, आई वॉन्ट टू वर्क विद एनी ऑफ द बिगर ग्रुप, एम्बिट कैपिटल, और wherever whichever company you want to work into, which is specifically into investment banking. Now, what you have done, you have applied into those companies using your resume. Now, there are आपके जैसे अगर मान लो एक वैकेंसी आएगी तो on and approximately 500, 600, 1000 candidates are going to be applying for the same. What is your probability of getting shortlisted? Very less. है ना, अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया, what is your probability of getting shortlisted? It is going to be 1 by 1000. Now, two things which is going to be helping you to outshine yourself. First is of course your reference. Second is your resume. अच्छा चलो मान लो कि my resume is not that great. Gone. If you have a reference, even if the reference pushes us out, interview will say that यार ये CV काम का नहीं है, he or she does not hold a good exposure related to IB. So what is really important is to outshine, to highlight and showcase whatever skill sets you are interested to getting into. Now I'll just show you a short brief, right, which is going to be helping you understand what is something which is very important when you're going for an industrial training, and how my students in the past have leveraged this out and got into industrial training. ठीक है, अब एक सेकंड दीजिए. I'll just show you one of the very interesting thing. Now, this is a CV of one of the candidate. This is a CV of one of the candidate which is going to be visible in your screen. What he wanted is he wanted to get into investment banking domain. ठीक है, he was an article with BSR, which is KPMG. What he did was he incorporated the skill sets. And after that is done, he joined Goldman. And after he worked with Goldman, देखो उन्होंने industrial training की Goldman में, he have worked into Goldman. Now he's working in one of the very good company out into IB. So what is something which I'm going to be telling out here is, please understand. आपके जैसे 1000 CVs market में मिलेंगे. There are 1000 CVs which are going to be rotating into the domain. Since we have already discussed about which domain to choose into, whenever you are going into domain, you need to showcase something which showcase your expertise or knowledge into that domain, right? It can be through either watching some course or masterclass or some certificate which you can just put it out, which is going to be helping you to outshine yourself. Now, the first and foremost thing which every company that was something which is going to be looking when they're going to be shortlisting your resume, first and most important is your work ex. Sir, कौन सा page number है? Page number please. Okay. Let us come to page number 64. The first and foremost thing which every company is going to be looking for is your work experience. Work experience is including your articleship experience. What all areas you have worked into in articleship, which firm you have worked into, how many partners were there. ये सब चीजें check करेगा. Second, very important, in WorkX, they will specifically look for keywords. Say for example in start audit, what all areas you have done in start audit. They will check for start audit. Have you worked in revenue? Have you worked on index? Have you worked on schedule 3? Do you have a knowledge of XYZ thing? So that is something which they are going to be testing for. Next, this thing which they are going to be checking is certificates / achievements, which is there. So say for example, if you are getting into an IB, do you have a knowledge of financial modeling? Right? If you are getting into an FP&A, so do you know how the planning is going to be happening? Do you know how the budgeting is going to be happening? अगर knowledge ही नहीं है तो भैया आपको hire करके करूँगा क्या मैं? Because you're not a good guy, right? So that is something which is really important when you are going to be going into this, the certificates and achievements. इसके साथ साथ they'll check some of the extracurricular activities. What do you do during your free time, right? All those things are going to be seen. इसके साथ साथ there is a concept of
spike which is there है ना, spike I've already told you, spike is something which is unexceptional activity done during the career or journey or not. तीन जगह होती है, academics, they'll check your academics which is there, कि how good you were in 10th standard, 12th standard, BCom and all the places out to have you got a rank. Work experience, and third is extracurricular activities. So I guess unexceptional work during your career or journey. Then unique work, आपने कोई यूनिक वर्क किया है या प्रोजेक्ट किया है और समथिंग एक्सेप्शनल यू हैव डन, तो दैट इज समथिंग व्हिच दे आर गोना बी लुकिंग इन योर रिज्यूमे. ओके, एंड लास्ट एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर, फॉर्मेटिंग, राइट, ऑल दोस थिंग्स द कंपनीज आर गोना बी चेकिंग इन कि भैया फॉर्मेट सही है कि नहीं, ग्रामर सही है कि नहीं. सर आई हैव अ बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑफ अ रिज्यूमे? प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑफ अ रिज्यूमे. आप रिज्यूमे ऐसा बनाइए, आप रिज्यूमे ऐसा बनाइए, आप रिज्यूमे ऐसा बनाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. प्लीज अंडरस्टैंड, right, there is no universal format of a resume. Forget whatever you have seen and learned at other places out, but I am into this industry for almost 5-6 years now, and I'm working with a lot of HR, so I'm telling you there's no universal format. Resume, very important part is the content, माल मसाला अंदर क्या डला हुआ है, that is really important. So what is resume? Resume is something which discuss about what activity you have done in the past which will help an interview to hire on a future date. Past में आपने क्या उखाड़ा है, past में आपने क्या अच्छा कुछ किया है, वो आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा इंटरव्यू को, वो हमें समझना है. Now many a times you need to check whether your resume is ATS friendly or not. What does ATS means? Application tracking system. अब देखो क्या होता है, 1000 सीरीज है, 1000 सीरीज HR खोल के बैठ के नहीं चेक करेगा. So what is going to be happening? Please understand, HR is going to be uploading those CVs in some tools or websites which is there, and they will put a job description or details out. I'll show you. CMonk have created a AI based website which is tools.cmonk.com, where I'll just show it to you in a while, where you can check whether your resume is ATS friendly or not. तो keywords डालेंगे, keywords के basis पे score आएगा, your resume will get some score. So it is really important to run through an ATS test. तो ATS test run करने के लिए हमने एक website बनाई है, tools.cmonk.com. Request you to please check it out. I'll just show it to you how you're going to be using it in a while. Now let us come to one of the sample resume which I have created for you guys, where you can just use it out, right? And that is something which is really important. देखो format important नहीं है, content important है, ध्यान से समझिए. अब चलो सबसे बड़ा बेसिक चीजें हैं. सबसे पहले your name. Sir, once you go to an LMS, I have given you the 2-3 different formats of a resume. Please download it out. Don't copy paste it. You can just use it out. These are the templates which are there. Over a period of time, I'll keep on updating more and more of a templates. So please do check it out in the LMS. ओके, LMS में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मिल जाएगा. नेम लिखिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी, वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. योर एकेडमिक्स डिटेल बेस्ड ऑन द रिसेंसी, व्हाटएवर हैव बीन डन, राइट, यू कैन जस्ट पुट इट आउट बेस्ड ऑन द रिसेंसी व्हिच इज देयर, राइट. इसको चाहिए तो आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते थे बेस्ड ऑन द रिसेंसी व्हिच इज देयर. ओके, तो दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड. तो ये ऐसा नहीं चलेगा, इसमें ना कुछ चीजें हैं जो मैं बताते जाऊंगा. इसको रिसेंसी में आएगा तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा. नाउ वन गुड थिंग व्हिच इज देयर, इफ यू क्लियर्ड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, हाईलाइट इट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट. सर, आई हैव registered for BCom but I have not updated to ICI. Can I put it in my resume? देखो, अगेन इट्स योर चॉइस, राइट. इफ यू वांट टू पुट इट, बट अगेन रिस्क लेना है तो लो. मतलब फिर अगेन दे विल आस्क यू कि आपका बीकॉम कितना बच्चा है, एंड दे विल आस्क यू कि will you go to a college after this? तो all these questions will start arising in, ठीक है. तो ये सब क्वेश्चंस अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो प्लीज अगेन अकॉर्डिंगली यू प्लान इट आउट कि क्या करना है आपको. Basic details of a college, marks if possible, put it in totals as well as in percentages, and any achievements or remarks you have gotten, just try to put it out, because that is something which will help you to outshine yourself. Now very important, work experience, right? Articleship कहाँ से है? Articleship associate. Name, location is important. Duration, what you have worked for, put the duration which is there. फॉर्मेट कुछ भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है. नाउ इफ इट इज अ गुड फॉर्म, बैंग ऑन. इफ इट इज नॉट अ गुड फॉर्म, यू नीड टू डिफाइन दैट फॉर्म. अब इन्होंने अच्छी फॉर्म से किया तो कोई जरूरत नहीं है डिफाइन करने की, बट इफ द फॉर्म इज स्मॉल इनफ, जैसे कि ये फॉर्म देखते हैं, तो कैन जस्ट डिफाइन इट आउट. लीडिंग सीए फॉर्म, हेडक्वार्टर्ड इन सूरत विद 5+ ब्रांचेस एंड 250+ क्लाइंटेल, 100+ एम्प्लॉइज. सर, हाउ डू वी डिफाइन अ फॉर्म? वेरी गुड थिंग व्हिच आई हैव डन इन योर नोट्स. जस्ट कम टू पेज नंबर 65. आप इन सब चीजों को पढ़िए. आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, राइट. अब जैसे इसको पढ़ेंगे यू विल गेट अ डिसेंट आइडिया कि हाउ डू आई डिफाइन माय फॉर्म. प्लीज अंडरस्टैंड, defining of your firm is really important, because you need to showcase that you are the best. हर एक इंसान को अच्छा इंसान चाहिए, even if it is a mid-size firm or a small firm, bang on, right? Define it in a such a way. Please understand, there's no mid-size firm or a small firm. All the firms are leading firm, well-known firm, renowned firm, oldest firm. तो उसको आप बढ़िया से डिफाइन कीजिए. वीडियो को करेंगे पॉज, अरे 2x वाले, हाँ,
वीडियो को करेंगे पॉज और डिफाइन करें अपने फॉर्म को. हाउ डू यू डिफाइन अ फॉर्म? एनीथिंग यू कैन जस्ट पुट इट आउट. सर बट माय फॉर्म डज नॉट हैव 5 ब्रांचेस. नो प्रॉब्लम. लीडिंग सीए फॉर्म हेडक्वार्टर्ड इन सूरत with 250 plus client 100 plus employees. Sir, my firm does not have 100 plus employees. Leading CA firm headquartered in Surat with 250 plus clientele, well known for start audit and tax audit. That is how you can define your firm. इस तरीके से आप फॉर्म को डिफाइन कीजिए. That is going to be helping you to get an edge. Define the form. देखो प्लीज फॉर्म को डिफाइन करिए अगर फॉर्म छोटी है तो, because that is going to be helping the other person to know that whether you have done articleship from a good firm or not, है ना. Once you define your firm, एक बार मैंने अपनी फॉर्म को डिफाइन कर दिया, then very important thing which is going to be starting is every sentences which is going to be starting here is going to be starting with the action words: used, managed, conducted, prepared, organized, analyzed, researched, right? अगर आप कोई भी resumes उठाएंगे तो you can see it out: handled, drafted, prepared, filed, presented, executed, led, analyzed, researched, summarized. What is this? Every sentences in the resumes preferably start from the action word. Why? Because resume is something which talks about the past, which will help an organization to hire on a future date. Sir, कहाँ मिलेंगे? इकट्ठे मिलेंगे action word. Very good. Page number 64 पे आइए. I have given you the list of action words which are there. I have given you the list of action words which are there depending on the quality you want to use it out. अगर if you are feeling like these are the less action words, don't worry. What you can do, very simple. Go to ChatGPT, put the action words out. You can just use it out. अब एक चीज मैं बता देता हूँ. What happens many a times, if I'll just show you one of the things which is mistakenly done by this candidate in the CV was, अब देखो awarded, recognized, awarded. भाई awarded के लिए कुछ अच्छा action word use करें ना. Don't repeat the word, right? As and when you start repeating the words, it's going to be becoming a monotonous for the people out who is going to be doing it. Now next very important thing, second thing, right? numbers, right? Numbers build trust. नंबर से भरोसा बढ़ता है. भरोसा जीतना है सामने वाले का. तो put some numbers out. Sir, can you put a client name? देखो please understand, ऐसा कोई requirement नहीं है कि डालना है कि नहीं डालना है. It's up to you. If you worked on some good clients, you can put it out. Sir, but data privacy issue कोई दिक्कत नहीं है. When you fill out ICA campus form, so that time anyways you need to give a data, and every data is available on MCA portal. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जब पार्टनर साइन कर रहा है आपके फॉर्म का, एनीवेज ही और शी इज गोना बी सेइंग दैट कि आई हैव ऑडिटेड रिलायंस, आई हैव ऑडिटेड XYZ कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड है तो वैसे ही आएगा. You can just not take the data from there. So if you have worked on a good client, you can highlight it. Otherwise, अगर नहीं दिखाने हैं, you can just put it out in the different way, saying that executed a statutory audit and tax audit site visits, including financial statements and reporting of a corporate and non-corporate clients with 5+ sectors: airline, diamond, textile, home science, home service, having a turnover amounting to 50 to 80 crores. So this is how you're going to be putting it out. Okay, sir. So next thing, sentence framing is really important. Please understand. Basic sentences मत लिखो. Have done, have filed GST return. अरे कचरा अच्छे से लिखना भाई. Because you are gonna be going to an industry, you're gonna be working with the corporates, global companies. So you need to put it out in a very nice way. Second very important thing, when you're gonna be putting out anything, please understand. भैया अच्छी चीजों को highlight करें. If you could see out the things which are highlighted in the resumes, if you could see the things which are highlighted in the resume, what I have done. Taxation के regarding जो काम होता था सब कुछ मैंने इधर हाईलाइट कर दिया. हैंडल्ड एंड टू एंड वर्क, असेसमेंट प्रोसीडिंग, अपील्स, इनकम टैक्स, TDS, GST, न्यू टैक्स अमेंडमेंट्स एंड कंप्लायंसेस. This is what the work is done in a taxation. You are directly showing that I have worked on all the areas related to the taxation. So bang on, nothing like it. Highlight it out in a such a way. Now highlight बहुत important है. अब देखिए रीड करते हैं सेंटेंस को कैसे फ्रेमिंग किया गया. सेंटेंस फ्रेमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. भाई कुछ भी उठा के उल्टा पुल्टा कचरा मत लिख देना, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. हैंडल एंड टू एंड वर्क रिगार्डिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ अ क्लाइंट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, फेसलेस असेसमेंट्स ऑफ 60 क्लाइंट्स अमाउंटिंग टू 1 crore ऑफ टैक्स लिटिगेशन. लग रहा है दमदार काम किया है, कचरा काम नहीं किया है. तो जैसे द टाइम यू आर गोइंग टू बी पुटिंग आउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटरव्यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अ ट्रस्ट. तो आपको क्या करना है, रिकॉल योर एंटायर आर्टिकलशिप, थिंक, क्लोज योर आईज, रिकॉल योर एंटायर आर्टिकलशिप एंड यू आर गोइंग टू बी राइटिंग इट आउट इन अ वेरी नाइस वे. हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड वर्क यू वर्कड इनटू. ठीक है. अब ये मैंने ये सिखा सकता है रिकॉल कैसे करना. भैया आप ही काम कर रहे हो, यू आर स्टिल वर्किंग आउट, ओपन द वर्किंग पेपर्स, ओपन द फाइल्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, गो टू द सीनियर. नाउ वन बिगर प्रॉब्लम, इवन इफ यू हैव वर्कड इन जस्ट असिस्टेड और यू आर जस्ट एन इंटर्न और यू आर जस्ट working in a very smaller area, but you should know whatever have been happening in a client, what all issues were there, how did you close it out, what type of audit opinion or what opinion was issued. ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा. इशू के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. भैया बताइए क्या इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए. तो all these things you just need to put it out in a very nice way, right? Favorite questions हो जाते हैं 115, 116, कारो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलरेडी आप कवर्ड इन डोमेन वाइज सेशन, बट प्लीज अंडरस्टैंड you need to be very particular. अगर आपने IFC लिखा है, पता होना चाहिए what is applicability of IFC, right? So that is something which is going to be expected when you're going to be writing any or anything. इस तरीके से आपको ये आर्टिकलशिप को इज्जत से प्रेजेंट करना है. Now very important, after this is done,
since whichever domain you are interested into, you need to showcase that. अब मेरा एक स्टूडेंट था तो what he did a फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स, उसने मेरे से फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया, सिमुलेशन का कोर्स किया. सिमुलेशन जनरली हैपेंस इन द जीआईआर बैच, राइट? तो जीआईआर में उसने सिमुलेशन किया एंड ही कंप्लीटेड आउट एंड पुट द सिमुलेशन आउट. अब जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग मेरे पास किया तो उसने लिखा कि परफॉर्म द कंपनीज वैल्यूएशन, मार्केट अप्रोच, डीसीएफ, है ना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मॉडल्स, प्रोफाइल सेक्टर एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग टीजर इन अ पिच डेक. तो ये सब उन्होंने जो भी किया वो लिख दिया. तो सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, ही और शी नोज प्रैक्टिकली हाउ टू डू अ डीसीएफ. इसके साथ साथ उन्होंने एक फाइनेंशियल मॉडल भी बना दिया एंड ही इज आल्सो अटैचिंग एज अ कवर लेटर व्हिच इज गोना बी एक्टिंग एज अ प्रूफ दैट आई नो द थिंग्स प्रैक्टिकली. इस तरीके से आपको जो भी सर्टिफिकेट है या जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, राइट, यू कैन डेफिनेटली शो इट आउट इन अ नाइस वे. ठीक है, जैसे एक्सेल का कुछ किया या स्टार्ट ऑडिट का कुछ किया या एफपीएनए का कुछ किया या एनी ऑफ द डोमेन, यू हैव डन इट आउट, पुट इट आउट इन द वेरी नाइस वे. एक अच्छे से करिए, उसको दिखाइए. इससे आपको एक एज मिलेगा, इससे आपको एक एज मिलेगा. इसको आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू शिफ्ट इट अप, यू कैन डू इट. इफ यू शिफ्ट इट डाउन, यू कैन आल्सो डू इट आउट, नो प्रॉब्लम. देन इसके साथ साथ सर, इसके साथ साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. डिफाइनिंग अ फॉर्म इज डन. Now next, very very important, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा and this is something which should be known to you. Whenever you're going to be presenting any of the information, it can be either domain wise, it can be either sector wise, right, or it can be client wise, wherever you want to present it out. सर मैंने अभी जैसे डोमेन वाइज था, डोमेन वाइज कैसा था बेटा? सर जैसे कि दिस इज डोमेन वाइज, है ना, टैक्सेशन, ऑडिट, मिसलेनियस. क्लाइंट वाइज कैसे होगा? जैसे दिस इज अ क्लाइंट वर्क, दिस इज अ क्लाइंट वर्क, दिस इज अ क्लाइंट वर्क. इस तरीके से प्रेजेंटिंग, सॉरी, दिस इज अ क्लाइंट वर्क, क्लाइंट वर्क, क्लाइंट वर्क. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग अ क्लाइंट वाइज. ओके. थर्ड, है ना, सेक्टर वाइज कैसे हो जाता है कि आप इसको एक सेक्टर दिखा दो कि भैया आई हैव वर्कड इन दिस सेक्टर्स एंड दिस ऑल एरियाज आई हैव वर्कड इनटू. तो यू कैन जस्ट डिफाइन द सेक्टर्स. आप जाइए आप पेज नंबर 66 पे. ओहो हो, रुकिए भैया, ध्यान से देखिए. राइट, गो टू पेज नंबर 66, सी द सेक्टर्स यू हैव वर्कड इनटू. टिक करते जाइए कौन कौन से सेक्टर में आपने काम किया है. इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपको, राइट. इससे आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट विल गेट टू नो व्हिच एरिया यू आर इंटरेस्टेड इनटू. टिक मार्क होटल सेक्टर्स यू हैव वर्कड इनटू. ठीक है, कोई एडिशनल होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए, प्लीज राइट इट डाउन. अरे लिखिए जी, क्या ही सोच रहे हैं, है ना. टिक करो टिक करो टिक करो. चलो, याद रखें, आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, समझ लीजिए. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू आर वर्किंग इनटू. गाइस कम ऑन, हरी अप. ग्रेट. Done sir, done, done, dara. Okay, very good. Next, extracurricular activities. Please understand, whenever you're going to be putting out any of the extracurricular activities, काफी लोगों को complain होता है कि सर मेरे को पता ही नहीं मेरी extracurricular activities. I don't know what all extracurricular activities I have. कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप काम करें, एक एनजीओ ज्वाइन कर लें. Where you are trying to drive an impact, कुछ असर, कुछ अच्छा कर रहे हैं. Trying impact, leadership qualities, all those skills you can just put it out by joining an NGO. तो just join an NGO, यहाँ से आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा, है ना. I've given you the list of some good NGO names which you can just join in, which is going to be helping you to get an edge. Second, please understand, whenever you're going to be putting out anything in extracurricular activities or wherever places out, please understand you need to give a context and quantify. जैसे कि यार काफी लोग लिख देते हैं वन अ बेस्ट प्राइज. अरे नहीं भाई, वन अ फर्स्ट प्राइज. अरे कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ बिग वाज द कंपटीशन, ऑल दिस थिंग्स यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ कंटेक्स्ट एंड गिव अ बैकग्राउंड. प्लीज अंडरस्टैंड. जैसे कि लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द केस, है ना. जैसे कि यू नीड टू राइट वन अ बेस्ट एक्टर अवार्ड, वन प्ले एक्ट आउट ऑफ 300 एक्टर्स, 63rd ऑल इंडिया ड्रामा डांस कंपटीशन शिमला, नेशनल इंडिया डांस कंपटीशन. तो मैंने क्या किया, डिफाइन किया, कंटेक्स्ट दिया, कब हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग आउट विच बिल्ड्स अ ट्रस्ट. ठीक है. So whatever extracurricular activities you have done in a school or a college days, just put it out in a very nice way. नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप करिए, जाइए एनजीओ जाइए, बाकी चीजें करिए, which is going to be helping you to get an edge. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट पुट योर एडिशनल स्किल सेट, जो भी आपने एडिशनल टूल्स और थिंग्स यू हैव लर्नड इट आउट ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. वन टूल व्हिच इज गोना बी ग्रोइंग इज अ पाइथन. पाइथन अगर सीख के जाओगे एंड इफ यू आर मूविंग टू एन इंडस्ट्री, बहुत एज मिलेगा. अरे भाई बहुत मजा आएगा, राइट. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द पाइथन कोर्स इन माय वेबसाइट. बहुत शानदार कोर्स बनाया, मजा आ जाएगा आपको देख के. लैंग्वेजेस यू कैन जस्ट पुट इट आउट. सर्टिफिकेट्स जैसे कि एडवांस एक्सेल 10 आवर्स कहां से कर रहे हैं वो लिखिए. इफ यू हैव डन इट, वेरी सिंपल. इफ यू अंडरगोइंग इट, लाइट अंडरगोइंग पाइथन CMOUT 60 आवर्स का कोर्स है. आर्ट्स लिखने से इट बिल्ड्स अ ट्रस्ट कि भैया कितने देर का सामने वाले को समझ में आता है. ठीक है, इस तरीके से यू कैन जस्ट पुट इट आउट.
Few things when you are sharing your resumes. First, very important sir, resume एक पेजर का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा. ज्यादा दिमाग ना लगाए. वन पेजर. Standard fonts रहेंगे Arial, Calibri, Times New Roman and Cambria. These are the 4 fonts which are recommended. इससे ज्यादा आप ज्यादा दिमाग ना लगाए. 4 fonts recommended है. Font size should be 10 to 12. इसके अलावा चेंज नहीं करेंगे. Prepare resumes customized company wise and domain wise. You need to build customize it. FP&A में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलग, उसका सर्टिफिकेट ऊपर या थोड़ा सा उसका स्किल सेट उस हिसाब से दिखाइए. IB में जा रहे हैं तो अलग, डिफरेंट है ना. Divided into sections: education, work experience, extracurricular, additional skills. Arrange the intersections. ये तो मैंने बता दिया. Under descending order recency में रहेगा. Whatever you've done it recently should be at the top. Email ID should not be funky, right? Keep it simple, right? Smart.shibam मत करिए. Keep it simple. Don't put much numbers. 4 numbers, 5 numbers are okay. उससे ज़्यादा numbers ना रखें. Customize your LinkedIn profile. I've already told you in the LinkedIn session. Sir, objective लिखेंगे, very important sir. ऐसा कोई objective चेप दूँ क्या सर resume में? राइट अब ऑब्जेक्टिव लिखने से अच्छा, देखो सर यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है. ऑब्जेक्टिव लिखेंगे नहीं. आप देखो जनरली सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कीन टू राइट एन ऑब्जेक्टिव. कुछ तो लिखना है सर, कुछ तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है. देखिए कुछ नहीं करना है. देखो यार आपको है ना, एक मैं रिज्यूम दिखाता हूँ. Right, I'll just show you one of the resume where I'll just give you the templates. Right, I told you I've given you the templates. So let me show you one of the template which I'm going to be giving it to you. I will give you 2 different templates which are there, which will of course going to be helping you to get an edge. Let me just change my screen. So this is one of the template which I'll be giving it to you. Right, CA article trainee with their experience in stat audit and compliance, सीकिंग इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना. अब एकदम सिंपल मैंने लिखा कि मैंने क्या किया है, मेरे पास क्या एज है, व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव, राइट. दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव ट्राइड टू पुट इट ऑन, है ना. ज्यादा वो फंकी नहीं लिखने का है ना, कि मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप किया है, इतना मेरा नॉलेज है, राइट. वही लिख रहा है मैंने. एनहांस माय स्किल इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, ईगर टू ब्रिंग एन एनालिटिकल स्ट्रेंथ्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द टीम. सिंपल. तो दिस इज वन ऑफ द वे टू पुट इट आउट. अगर नहीं लिखना है, अवॉइड इट. लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे. आर्टिकल एक्सपीरियंस, ये इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं. चेंज द फॉर्मेट, यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स. अच्छा, एक बढ़िया सी शानदार सी चीज बता देता हूँ. हमारी जो वेबसाइट है tools.cmonk.com, आपकी फेवरेट वेबसाइट हो जाएगी कुछ दिनों में, बिकॉज यहाँ पे यू विल गेट वन मोर ऑप्शन टू क्रिएट अ रेज्यूमे टूल. अभी तो नहीं है बट आफ्टर फ्यू डेज, राइट. अब बाद में देखोगे तो यहाँ पे एक रेज्यूम क्रिएशन का टूल आ जाएगा AI बेस्ड. मजा आ भी जाते है ना. फिर आर्टिकल असिस्टेंट डिटेल्स लिखिए, इंटर्न आपका डिटेल्स लिखिए, क्या काम किया है ना, उसको चेंज कर लिए. लीडरशिप दिखाना है वो, सर्टिफिकेट कोर्सेज. ICA ओरिएंटेशन, इफ यू वांट टू कीप इट, इफ यू वांट टू अवॉइड इट, नो प्रॉब्लम. एजुकेशन डिटेल्स डाल दीजिए, ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू पुट इट आउट, जस्ट पुट इट आउट. सिंपल. एक और फॉर्मेट है मेरे पास, वो भी मैं दिखा देता हूँ. रिज्यूम टेम्पलेट 2, जस्ट आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, है ना. तो अगेन नेम डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स. नहीं रखना है ऑब्जेक्टिव तो हटा दिया, रखना है तो एक टेबल पे ऐड कर लेना. बेटा वर्ड को थोड़ा सा इज्जत से चलाएंगे. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर गोना बी सेविंग इन दिस रेज्यूमे, F12 दबाइएगा. एज एंड व्हेन यू प्रेस F12, इधर जाइए और कन्वर्ट इट टू PDF एंड देन सेव इट आउट. ठीक है, इस तरीके से यू नीड टू क्रिएट योर रेज्यूमे. F12 करके करेंगे, कंट्रोल P करके नहीं. कंट्रोल P करेंगे व्हेन इट इज द फॉर्मेटिंग गेट चेंज. ठीक है, अब इस तरीके से अगर डिफाइन अ फर्म, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिफाइन अ फर्म. लीडरशिप हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, एरियाज एंड इंटरेस्ट हो गया. ये रखना है तो रखें, नहीं तो डिलीट कर दे. एडिशनल स्किल सेट्स, यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन पुट सम सर्टिफिकेट्स इट इज देयर. यू कैन शिफ्ट इट अबव आल्सो, तो व्हिच इज गोना बी अगेन गोना बी गिविंग यू गुड एन एज. अच्छा, चलो वापस आ जाते हैं सर, वापस आ जाते हैं. लेट अस कम बैक टू द डिस्कशन व्हिच वी आर डूइंग. ओके जी, ओके है ना, ये आ गया. ब्रीफ प्रोफाइल बता दिया मैंने. ट्राई टू स्टार्ट विद द वर्क एक्सपीरियंस, क्वांटिफाई द इम्पैक्ट, मेक द रेज्यूमे जार्गन फ्री. उल्टे पुल्टे शब्द न डाले, जार्गन फ्री होना चाहिए. सॉफ्ट स्किल्स वगैरह दिखाइए, हाईलाइट एंड कैपिटलाइज फ्यू थिंग्स, डबल चेक, है ना. कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. यू रन थ्रू दिस, टेक एंड इनकॉर्पोरेट फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक अ फीडबैक फ्रॉम एटलीस्ट 3 पीपल आउट. के रेज्यूमे कैसा दिख रहा है, बट ज्यादा लोग को दिखाओगे अगेन इट्स गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो आप टूल से भी रिव्यू करवा सकते हैं. प्रूफ रीड द होल रेज्यूमे एटलीस्ट ट्वाइस, वर्ड बाय वर्ड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू रीनेम इट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रेज्यूमे, कंपनी नेम, रोल. खत्म. हमेशा PDF में रेज्यूमे जाएगा. ओ महाराज, मैम आपसे, सर आपसे विनती है भैया, PDF में भेजेंगे, उसके अलावा भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा. PDF में रहेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, रेज्यूमे, कंपनी नेम एंड रोल. दिस इज हाउ यू गोना बी पुटिंग इट आउट. नाउ वंस योर रेज्यूमे इज रेडी, क्या करेंगे, बड़ा आसान है भैया. देखो, जाएंगे रेज्यूमे टूल पे, क्लिक करेंगे, न्यू रेज्यूम स्कोर. जैसे आप लॉगिन करेंगे यू विल गेट 50 कॉइंस, राइट. एंड व्हेन यू कंप्लीट योर प्रोफाइल, जैसे आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे आपको एडिशनल और 50 कॉइंस मिल जाएंगे. तो ओवरऑल यू विल गेट 100 कॉइंस. यू कैन यूज इट मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू वांट टू यूज इट आउट. यहाँ पे जाएंगे, अपलोड करेंगे अपना रेज्यूमे. भैया चले हम हमारा रेज्यूम अपलोड करने चले. कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+L Ctrl+V, सैंपल रेज्यूमे फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. मान लो मैं यही वाला अपलोड कर रहा हूँ, विच एवर डोमेन आई एम अप्लाइंग फॉर. चलो, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू गेट इनटू IB. ठीक है, तो IB के लिए मैंने बना लिया है. स्कैन करेंगे, and as when you scan it will just take around 30 odd seconds का time. And once this is done, this is going to be giving me end-to-end feedback regarding my grammar, English,
एवरीथिंग विच इज देयर इन अ रेज्यूमे आपको बढ़िया से रिव्यू करके दे देगा, राइट। अगर पॉइंट्स कम पड़ेंगे तो सोचने का नहीं, फट से रिचार्ज कर लेने का, राइट। बहुत नॉमिनल रखा है आपके लिए, राइट। वैसे तो आपके पास एक ईमेल आईडी पे हो जाता है, बट अगेन इफ यू फील लाइक यू वांट टू डू फर्दर प्रूफ रीडिंग, बाय ऑन यू कैन डू इट। एक बार जैसे आप इसको रन करेंगे यू कैन डू इट ट्वाइस, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे दी गई है। जेडी भी डाल सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल सही है, ईमेल आईडी सही है, फोन नंबर सही है। जेडी मैच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, जनरली इट इज रिकमेंडेड व्हाटएवर इज देयर इन अ जेडी शुड बी देयर इन योर सीवी। वर्ड काउंट सही है, 608 वर्ड काउंट है, मेजरेबल रिजल्ट्स मैंने डाले हैं। If you want to change some of the things which are there, you can just again change it out. They have given you some good suggestions. है ना, कुछ स्किल सेट्स मिसिंग है इन माय प्रोफाइल, जैसे कैपिटल रेजिंग, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डीसीएफ है मेरे इसमें, ड्यू डिलिजेंस मिसिंग था। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट सम वर्ड रिलेटेड टू दैट, क्लिक हियर, एंड देन व्हेन यू क्लिक हियर आपको एक एंटायर सेंटेंस बन के मिल जाएगा रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस, एंड विच इज समथिंग यू कैन जस्ट पुट इट आउट, इट्स जस्ट गोना बी गेटिंग गिविंग यू गुड एज। एक बढ़िया सा सेंटेंस बन गया, इसको कॉपी करके यू कैन जस्ट गो टू द वर्ड एंड चेंज इट आउट, राइट। एफपीएनए, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, आईबीओ, एमएनए, मर्जर एंड एक्विजिशन मॉडलिंग, ये सब मिसिंग है, तो थोड़े से मेरे को कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। सॉफ्ट स्किल्स कुछ मिसिंग है, तो कैन जस्ट पुट इट आउट। एक्शन वर्ड्स आई यूज इट इन अ नाइस वे, दिखा रहा है। ग्रामेटिकल कुछ एरर्स नहीं है, कुछ सेंटेंसेस का ग्रामर चेंजेस बता रहा है, तो वो आई कैन डू इट आउट, ठीक है। परफॉर्मिंग है ना, परफॉर्म्ड कंपनी वैल्यूएशन, ठीक है, तो परफॉर्म्ड ही सही है ना। तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। जैसे कोरिलेशन में स्पेस नहीं आना चाहिए, तो ऐसा आएगा, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत है, मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत है, तो बता दिया उसने। तो दिस इज समथिंग विच अ बॉट इज गोना बी डूइंग इट फॉर यू, यू आर द पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कैन जस्ट रन थ्रू इट विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट अ गुड एज। अच्छा, एक और बढ़िया चीज, इसमें एक और स्कैनर अवेलेबल है, तो आप फिर से स्कैन कर सकते हो, है ना। जैसे आपका एक बार हो गया स्कैन, न्यू रिज्यूम स्कोरर, राइट, आप फिर से इसको स्कैन कर सकते हो, विच इज देयर। देखिए आपको आ गया फिर से, वन स्कैन लेफ्ट, तो कैन अगेन रीस्कैन इट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ जी सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, विच इज रिलेटेड टू AI bot. Now, please understand whichever domain you are getting into. Say, for example, I am getting into investment banking. I am a fresher, right? Select करें, next करते जाए, and you will practice your technicals from here, right? You can practice your technicals from here. तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, what is gonna be starting interview. Hello, Shivam. I'm Lisa, a chartered accountant recruiter specializing in the investment banking domain. It's great to meet you. Can you tell me a little about yourself and what excites you about pursuing a career in investment banking? ठीक है, so now what I need to do, I need to give an answer. So I am really interested to get into investment banking because this excites me the most, and number is something which I love the most. तो मैं ऐसे रैंडम आंसर दे रहा हूँ. Once this is done, it is going to be recording your answer. That's wonderful to hear. Numbers play a crucial role in investment banking. Let's dive into some technical questions. Can you explain the difference between a merger and an acquisition? So what this is going to be helping me is to prepare my technicals end to end, guys. आप समझ रहे हैं? तो प्लीज जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करिए, एंड एट द एंड यू विल गेट अ डिटेल फीडबैक फ्रॉम द बॉट कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन इट राइट, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन इट रॉन्ग. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं. मिला इंटरव्यू ले लो. अरे भैया एआई बॉट बनाया आपके लिए, शानदार बॉट बनाया, जाइए प्रैक्टिस कीजिए, है ना. काफी आपको मदद होगी, राइट. ऑफ कोर्स कॉइन लगेगी 50 कॉइन से, राइट. आप जब आप लॉग इन करोगे तो कुछ कॉइन्स आपको मिलते हैं एडिशनल. इफ यू वांट यू कैन डू अ रिचार्ज. भैया करियर के लिए ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा सोचोगे तो पीछे रह जाओगे. तो बढ़िया दो चीजें हैं, ये ट्राई कर सकते हो. सैलरी एस्टिमेटर भी है, उसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी कितनी सैलरी होगी, राइट. इधर देखो एक पैरामीटर फर्क पड़ता है, हैव यू डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है तो ऑफ कोर्स योर सैलरी इज गोना बी गेटिंग अ गुड एज, तो व्हिच इज देयर. अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, राइट. तो ये सब चीजें आप करिए. अरे रे क्यों नहीं करते हो, पाप लगेगा. अरे देख कर दे, 2 लोग को शेयर कर दे, मजा आ जाएगा, मजा, राइट. बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाए हमने सी इंडस्ट्री में, आपके लिए भाई, आपके लिए. अरे कर दीजिए यार, मजा आ जाएगा हमें भी, ठीक है. तो इस तरीके से यू नीड टू क्रिएट एंड प्रिपेयर योर सीवी व्हिच इज देयर, योर रेज्यूमे, राइट. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अब नाउ वट एवर यू आर राइटिंग इट इन योर रेज्यूमे, डोंट फेक एनीथिंग, राइट. कुछ भी फेक करोगे गया. प्लीज अंडरस्टैंड 60 to 70% ऑफ योर इंटरव्यू विल बी रेज्यूम बेस्ड. रेज्यूम में जो लिखा है उसी के बेस पे पूछेंगे, नाइट. तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है. वट एवर यू आर गोना बी राइटिंग इट आउट, उसके बेसिस पे दे आर गोना बी प्रिपेयरिंग इट. नाउ वंस योर रेज्यूमे इज प्रिपेयर्ड, क्या करेंगे, टूल्स वाली वेबसाइट पे इसको रिव्यू करेंगे, करेक्शन करेंगे, अपडेट करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे. 2 स्कैन अवेलेबल है.
आफ्टर दिस इज डन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल्स, राइट। टेक्निकल के लिए मैंने मटेरियल दे दिया है शानदार वाला, उसमें से पढ़िए, प्लस एआई बॉट के साथ और प्रैक्टिस कीजिए, वेयर योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज गोना बी इंप्रूव। अब जैसे आप टूल्स वाली वेबसाइट पे जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 चीजें आने वाली है। फर्स्ट इज रेज्यूमे बिल्डर, तो ये रेज्यूमे आप वहां से भी बना सकते हो। सेकंड इज अ वर्सेंट और इंग्लिश कम्युनिकेशन बॉट, तो यू कैन इम्प्रूवाइज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन गोइंग इनटू द वेबसाइट। बॉट इज गोना बी आस्किंग यू a lot of questions and that is going to be helping you to improve your communication skills as well. तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए भाई, because this is really really important when you are going to be applying or preparing for any of the things which is there. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी when you are going to be preparing your resume. Don't make the mistakes, right? Grammatical errors, spelling errors, punctuations अच्छे से करें. If you're putting a full stop, put it everywhere. If you're not putting it, don't put it anywhere. ये basic चीजें हैं, right? चीजों को highlight कीजिए, जो भी words लिख रहे हो उसको ध्यान में रखिए. And please understand, if you're writing anything out, they'll ask you questions based on this. ठीक है, तो that's it about our resume building. And do check your resume score and let me know if you have any comments or feedback. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे दोस्त, दिक्कत होगी बाद में, चाहिए ज्वाइन करिए फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। So GIR was, beyond the expectations. We met so many people, we met so many mentors. सी बनने के बाद सर का सेशन ज्वाइन करने के बाद आधी टेंशन तो खत्म हो गई कि हाँ GIR वाला CMO ज्वाइन करने के। I have attended sir's GIR batch number 59 and it was a great session honestly. ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा मैं पहले था GIR के बाद था, आई रेट 515 बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंटरैक्शन स्किल्स प्लस रेज्यूमे एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सब कुछ ही हर एरिया में कवर किया GIR, सो 515। Quality of content that we get to know, all the things were very good. Physical campus कैसे होगा उसका एक थोड़ा सा टेस्ट मिला करता। ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो पहले नहीं पता था, कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, ऑफ कैंपस रिलेटेड, जैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो ओवरऑल वर्थ इट रहा।